Assalamu alaikum everyone. Now we are starting our second lecture on nephrology, in particular reference to acute renal failure. In first lecture we have already discussed the definition of acute renal failure and different phases, pathophysiology and classification of acute renal failure, and now we are continuing with clinical evaluation. In the last lecture I told you that our approach should be for management of any disease for any patient is HPLC. Means first is the H means history, P stands for physical findings or physical evaluation. It means that how the patient is looks appearance wise, and then the laboratory test, the relevant laboratory test results, and then finally the conclusion that what you need to, what is your strategy or the conclusion. C stands for conclusion for your strategy to manage that patient. Now in physical findings, when we are talking about the physical finding initially ARF cause azotemia, means increased urea level and serum creatinine. And we already talked about it that in 50 to 60% cases oliguria may occur. Later electrolyte abnormalities may occur, means sodium potassium level, phosphate level, and other systemic effects occur like metabolic acidosis. Urine output typically low from 20 to 500 ml per day. Complete anuria is rare. ओके तो कंप्लीट एनुरिया जो है वो बहुत रेयर केसेस में होता है, वरना ज़्यादातर केसेस में ओलिगोयूरिया होता है, लो यूरिन आउटपुट. साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरकैलेमिया डेवलप होंगे इन पेशेंट्स में, रिजल्टिंग इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड रिड्यूस पोटेशियम एक्सक्रीशन एंड इम्पेयर्ड किडनीज इंक्लूड. पोटेशियम का एक्सक्रीशन कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ इम्पेयर्ड फंक्शनिंग ऑफ द किडनीज. एंड बिकॉज ऑफ हाइपरकैलेमिया, what symptoms may appear in the patient? The first is the neuromuscular depression. Neuromuscular depression की वजह से, for example, paresthesias we can observe in the patient, muscle weakness, and maybe in severe cases paralysis may occur. Another important physical finding is diarrhea and abdominal distension. When you will check with the patient will complain about the diarrhea, and when you will do the auscultation or when you will check the abdomen, then you will find some distension. Slow or irregular pulse. This is another finding because of hyperkalemia. And ECG changes, electrocardiographic changes with potential cardiac arrest. That is possibility. Cardiac arrest is also possible in those type of patients who are having a previous history of heart failure or congestive heart failure. तो उनमें जो है ये इस चीज़ की पोटेंशियलिटी ज़्यादा होगी कि जो कार्डियक अरेस्ट में चले जाएं. लिहाजा वो पेशेंट्स जो कि जिनकी हिस्ट्री हो कार्डियक फेलियर की, यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की, तो फिर उन पेशेंट में तो ये जो है वो पेशेंट को आपने बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना है कि वो कार्डियक फेलियर में, हाइपरकैलेमिया की वजह से कार्डियक फेलियर में जाना ना शुरू कर दें. यूरीमिया, व्हाट इज़ यूरीमिया? इज़ एक्सेसिव नाइट्रोजनस वेस्ट रिटेंशन. लाजमी बात है, जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उसको बॉडी से जो है वो कौन निकालता है? किडनी. जब किडनी फंक्शनिंग इम्पेयर होगा तो फिर डेफिनेटली यूरीमिया होगा. यूरीमिया मीन्स रिटेंशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट. इसके अलावा लीड्स टू नोजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया. एडिमा होगा बॉडी में, कन्फ्यूजन, फटीग, न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी एंड फाइनली कोमा. ये सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी, बट द पेशेंट विल प्रोग्रेस टू दिस स्टेज ग्रेजुअली. आपके पास टाइम होगा कि उसको इनिशियली मैनेज कर सकें. अगर आपने इनिशियली मैनेज नहीं किया तो फिर पेशेंट जो होगा वो कोमा की तरफ प्रोसीड ग्रेजुअली कर जाएगा, प्रोग्रेस कर जाएगा टूवर्ड्स कोमा. इसके अलावा मेटाबॉलिक एसिडोसिस. अगर हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात करें, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ARF. अच्छा, इस पे भी हम बात कर चुके हैं, क्योंकि सोडियम सेल के अंदर जाएगा, पोटेशियम बाहर आएगा, एसिड एक्यूमुलेशन होगी बॉडी में,
जिसकी वजह से, और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ेगा तो कार्बोनिक एसिड ज़्यादा बनेगा, जिसकी वजह से पेशेंट जो होगा वो एसिडोसिस में जाना शुरू कर देगा। और इसी एसिडोसिस यानी पीएच ऑफ द ब्लड जब एसिडिक होगा तो उसी वजह से सोडियम सेल के अंदर जाएगा और पोटेशियम सेल से बाहर जाएगा। अच्छा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हमें कैसे पता चल रहा होगा? डिटेरियोरेशन ऑफ मेंटल स्टेटस, यानी वही डिक्रीज मेंटेशन, डिक्रीज मेंटल एक्टिविटी। ऑप्टेंडेशन यानी वही है कि जो है पेशेंट जो होगा विल नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड वेल। एंड फाइनली कोमा एंड लेथार्जी। यही सिस्टम हार्ट पे भी इफेक्ट करेगा। डिप्रेस कार्डिक कॉन्ट्रैक्टाइलिटी, हार्ट की जो जब नर्वस सिस्टम ऑफ हार्ट इट विल नॉट वर्क प्रॉपरली बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन सोडियम एंड इंक्रीज इन पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम का कामिंग इफेक्ट होता है, तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टाइलिटी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से डिक्रीज वैस्कुलर रेजिस्टेंस लीडिंग टू हाइपोटेंशन एंड पल्मोनरी एडिमा एंड मे बी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस इस मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम का लेवल चेंज होना शुरू हो जाएगा। अपने नॉर्मल लेवल से वो एबनॉर्मल लेवल पर जाना शुरू कर देंगे। सोडियम जो होगा वो हाइपोनेट्रीमिया में जाएगा और पोटेशियम हाइपरकैलेमिया में जाएगा। नॉजिया एंड वोमिटिंग होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से। इसके अलावा रेस्पिरेटरी एबनॉर्मैलिटीज, जिसमें हाइपरवेंटिलेशन एंड कोसोमल्स रेस्पिरेशन, ये भी यानी फास्ट रेस्पिरेशन होती है। कोसोमल्स रेस्पिरेशन विद डीप विद स्लो रिफ्लेक्सेस, यानी जो रेस्पिरेटरी मसल्स जो होंगे वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे होंगे, वीक हो रहे होंगे, और लेकिन जो है पेशेंट जो होगा फिर भी तेज़ी से सांस लेने की कोशिश कर रहा होगा। दिस इज़ कॉल्ड कोसोमल्स रेस्पिरेशन, यानी डिफ़िकल्टी होगी इन ब्रीदिंग। अब आते हैं एक और इशू पे, जो कि क्लिनिकल इवैल्यूएशन में हमें पता चलेगा। हाइपरफॉस्फेटीमिया, यानी फॉस्फेट लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अराइज बिकॉज ऑफ डिक्रीज फॉस्फेट एक्सक्रीशन, क्योंकि किडनी फंक्शन इज नॉट वर्किंग वेल, तो इस वजह से जब यूरिन आउटपुट कम होगा तो फॉस्फेट जो होगा वो भी बॉडी में जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। इट इज़ जनरली नॉट सीन इन ARF, यानी अर्ली स्टेज में शुरू में ये नहीं नज़र आएगा, फिर जब वो क्रॉनिक की तरफ जाना शुरू होगा तो फिर हाइपरफॉस्फेटेमिया होना शुरू हो जाएगा। बट एनीवे, एज सीरम फॉस्फेट राइजेस, हाइपोकैल्सीमिया रिजल्ट्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम फॉस्फेट कॉम्प्लेक्सेस। तो हाइपोकैल्सीमिया होना शुरू हो जाएगा फिर, यानी कैल्शियम लेवल कम होना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे फॉस्फेट लेवल बढ़ता चला जाएगा। द साइन एंड सिम्टम्स रिलेट टू रिजल्टेंट of hypocalcemia and metastatic soft tissue calcification. साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगी? एक तो हाइपोकैल्सीमिया होगा एंड मेटास्टेटिक सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिकेशन, यानी सॉफ्ट टिश्यू में जो कैल्शियम होगा वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। सॉफ्ट टिश्यूज़ क्या होते हैं? लाइक वही किडनी हो गई, GI ट्रैक्ट हो गया, ब्रेन हो गया, जितने सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, बजाय ये कि ये बोन यानी हार्ड टिश्यू में डिपॉजिट हो, ये सॉफ्ट टिश्यू में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी जो होगा हाइपरफॉस्फेटेमिया की वजह से हो रहा है और हाइपोकैल्सीमिया होगा, और कैल्शियम जो होगा वो बजाय बोन में डिपॉजिट होने के सॉफ्ट टिश्यू में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिकेशन। मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया इंक्लूड, अब जब हाइपोकैल्सीमिया होगा तो उससे क्या क्या होगा? उससे ये होगा, एक तो वही न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी, क्रैम्प्स, स्पेज़म एंड टेटेनाई, जैसे टेटनस होता है, जो आप टेटेनाई मीन्स कन्वल्जन। ओके, हाइपोटेंशन होगा, सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिकेशन, इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिकेशन होगा। अच्छा, मेंटल स्टेटस चेंजेस, ये भी होगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल कन्फ्यूजन, मूड चेंजेस, लॉस ऑफ इंटेलेक्ट एंड मेमोरी, मीन्स के जो इंटेलेक्चुअलिटी होती है किसी भी इंडिविजुअल की वो लॉस होना शुरू हो जाएगी। इंटेलेक्चुअलिटी को हम नॉर्मल फहम में कहते हैं, आम अल्फाज में कहते हैं कि अकल होना, यानी वो अकल की जो समझ बूझ है उसमें प्रॉब्लम आना या उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। तो दिस इज़ कॉल्ड लॉस ऑफ इंटेलेक्ट एंड लॉस ऑफ मेमोरी। तो ये मेंटल स्टेटस चेंजेस भी साथ में होना शुरू हो जाएंगे जब सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिकेशन होगी, यानी जब ब्रेन में भी कैल्सिफिकेशन होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जो हैं, जहाँ पे भी टेंडन्स हैं आपकी बॉडी में, उनके जो रिफ्लेक्सेस होंगे वो हाइपर एक्टिव होने शुरू हो जाएंगे। एंड ट्रोसियस एंड
शिवोस्टिक साइंस, ये भी जो है वो ये टेटिनाई यानी कन्वल्जन की जो है वो टाइप होती है। एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे, ठीक है, एब्डोमिन में भी क्रैम्प्स होंगे। इसके अलावा स्ट्राइडर एंड डिस्निया। स्ट्राइडर इज़ ए पर्टिकुलर साउंड, मीन्स के जब पेशेंट जो है वो डिफ़िकल्टी से जो है वो सांस ले रहा होता है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर चेक किया जाए तो एक स्ट्राइडर साउंड प्रोड्यूस होती है, उसको स्ट्राइडर कहते हैं। तो दिस इज़ स्ट्राइडर साउंड। और विद डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन डिस्निया, जिसको हमने यहाँ पे कोसोमल्स रेस्पिरेशन भी कहा था। होगा ये कि ये कोसोमल रेस्पिरेशन यानी फास्ट रैपिड रेस्पिरेशन होगी बट विद डिफ़िकल्टी। इसके अलावा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से हाइपोनेट्रीमिया भी होगा। हाइपोनेट्रीमिया होगा तो रिजल्ट फ्रॉम डाइल्यूशन एंड इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड शिफ्ट ड्यूरिंग द डायरेटिक फेज ऑफ ARF। मीन्स कि एक तो डाइल्यूशन, जब लाजिम बात है कि जब ब्लड में वाटर एक्यूमुलेशन शुरू हो जाएगी, किडनी से जो है यूरिन आउटपुट कम हो गया है, तो ब्लड में जो है वो डाइल्यूट होने लगेगा, तो उसकी वजह से भी जो सोडियम लेवल होगा वो डाइल्यूट हो जाएगा और ब्लड लेवल जो होगा वो कम आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से भी सोडियम जो होगा वो इंट्रासेल्युलर मूवमेंट करेगा और उसकी वजह से यानी pH बढ़ने की वजह से, जो है एसिडिक होने की वजह से, कम होने की वजह से pH जो होगा, सोडियम जो होगा वो सेल के अंदर जाना शुरू कर देगा। और इसकी फिजिकल फाइंडिंग्स क्या होंगी? लेथार्जी होगी पेशेंट में, ठीक है ना, वीकनेस, ठीक है, सीजर, वही टेटिनाई, कग्नाइटिव इम्पेयरमेंट, वही है कि अकल, सोच, समझ की जो आपके हवाई से खमसा है, यानी देखने की, सुनने की, समझने की, ये जो सोच समझ है, ये कग्नाइटिव इम्पेयरमेंट, ये भी जो है वो डिस्टर्ब होना और वीक होना शुरू हो जाएंगे, इम्पेयर होना शुरू हो जाएंगे। एंड पॉसिबल रिडक्शन ऑफ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, एंड जो कॉन्शियसनेस होगी पेशेंट की वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें जो होंगी वो पॉसिबल होंगी हाइपोनेट्रीमिया की वजह से। तो इसी वजह से मैंने आपसे शुरू से कहा है कि ऐसा पेशेंट जो होगा बहुत सीरियस होगा, उसको आपने कोशिश ये करनी है कि ICU में डील करना है। अच्छा, इसके अलावा इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम डिप्लीशन, मीन्स के इंट्रावेस्कुलर ब्लड वेसल्स में वॉल्यूम डिप्लीशन, एंड वो क्या सजेस्ट कर रहा होगा कि अगर ऐसा है तो दिस इज कॉल्ड प्री रीनल फेलियर, मीन्स के किडनी से पहले कुछ प्रॉब्लम है, प्री रीनल फेलियर, एंड मे कॉज फ्लैट जुगुलर वेनस प्रेशर। आप जो गर्दन के साथ जुगुलर वेन होती है उस पर जब आप उसको जो पल्स चेक करेंगे तो वो फ्लैट होगी, यानी वो वाज़े तौर पर जो है वो फील नहीं होगी। When the patient lies supine, यानी पेशेंट को जब सुपाइन पोजीशन पर लेटाएंगे यानी तिरछी पोजीशन पे करवट के साथ, तो जो है वो ये जो जुगुलर वेनस पल्स होगी ये फ्लैट होगी, यानी वाज़े तौर पर फील नहीं होगी। इसके अलावा ऑर्थोस्टेटिक चेंजेस इन ब्लड प्रेशर एंड पल्स, यानी जैसे बॉडी का पोस्चर चेंज होगा उस हिसाब से तेज़ी से ब्लड प्रेशर भी चेंज होगा और पल्स रेट भी चेंज होगा, दोनों में चेंज आएंगे। यानी पोस्चर चेंज होने का मतलब है जैसे लेटे से बैठा दिया या बिठाई से खड़ा कर दिया या खड़े से बिठा दिया, बैठे से लेटा दिया, तो उसमें जो होगा वो बहुत तेज़ी से चेंज आना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड ऑर्थोस्टेटिक चेंजेस। इसके अलावा पुअर स्किन टर्गर एंड ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी जब स्किन को आप दबाएंगे तो उसका जो रिस्पॉन्स नॉर्मल होता है कि स्किन अपनी जगह पे वापस आती है वो पुअर हो जाएगा, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन यानी स्किन की जो मेम्ब्रेन भी जो होगी वो ड्राई होना शुरू हो जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें सजेस्ट कर रही होंगी कि द पेशेंट इज़ हैविंग प्री रीनल फेलियर, और फिर उस पेशेंट को प्री रीनल फेलियर के हिसाब से उसकी फर्दर इवेल्यूएशन की जाएगी, और जब कन्फर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस हो जाएगा तो फिर उसका ट्रीटमेंट भी उसी हिसाब से देना पड़ेगा। इसके अलावा अदर फाइंडिंग सजेस्टिंग प्री रीनल फेलियर, इसके अलावा भी कुछ और फाइंडिंग्स हैं प्री रीनल फेलियर में जो कि हमें मालूम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एन एब्डोमिनल ब्रूट। एब्डोमिनल ब्रूट क्या? ब्रूट एक साउंड होती है, ठीक है, साउंड होती है पॉसिबली इंडिकेटिंग रीनल आर्टरी
स्टेनोसिस। जैसे कभी आपने पानी के पाइप में देखा होगा कि अगर उसमें से पानी का पाइप एकदम जो है उसको पानी तेज़ी से आना शुरू हो तो गुल 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 की सी आवाज़ आती है। तो दैट इज़ एक्चुअली जब इसी तरीके से अगर जो जब रीनल आर्टरी में भी स्टेनोसिस यानी कहीं रुकावट होगी तो इस जब ब्लड जो होगा एकदम प्रेशर से जो है वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा तो एक साउंड प्रोड्यूस होगी जिसको कहा जाता है एब्डोमिनल ब्रूट, और ये ऑस्कल्टेशन में यानी स्टेथोस्कोप से ये साउंड सुनी जा सकती है। जब एब्डोमिनल ब्रूट साउंड सुनाई दे रही होगी तो ये रिकमेंड करेगा यानी ये आपको बता रहा होगा, इंडिकेट कर रहा होगा कि द पेशेंट में हैव रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। इसके अलावा इंक्रीज पैराडॉक्सस एंड सजेस्टिंग पेरिकार्डियल टेम्पोनेज, यानी पेशेंट जो होगा वो पैराडॉक्सस से पेरिकार्डियल टेम्पोनेज यानी हार्ट की साउंड भी जो होगी वो एबनॉर्मल हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा ये कि जो है जिस पे हम ये भी कहेंगे कि पैराडॉक्सस जो है वो उसमें क्या होगा कि जैसी पेशेंट जो है वो एयर को जो है वो इंस्पायर करेगा यानी लंग्स जो होंगे वो उसके जब इंस्पायर करेंगे तो एकदम सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर होगा यानी एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड प्रेशर होगा, तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड पैराडॉक्सस। अच्छा, इंक्रीज जुगुलर वेनस प्रेशर, और जो जुगुलर वेन में जो प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा। पल्मोनरी रेल्स इज ऑल्सो साउंड, रेल साउंड जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फील होगी। एंड थर्ड हार्ट साउंड सिग्नलिंग ए कंजस्टिव हार्ट फेलियर, और हार्ट में अगर जो है वो जो उसकी जो साउंड होती है उसके अलावा अगर कोई साउंड सुनाई दे रही है जो लेफ्ट डब साउंड के अलावा, तो दिस इज़ कॉल्ड थर्ड हार्ट साउंड, वो सिग्नल कर रहा होगा पेशेंट इज हैविंग कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो ये तमाम फाइंडिंग्स जो होंगी वो प्री रीनल ARF को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, यानी फिजिकल इवैल्यूएशन और डायग्नोसिस में हमें हेल्प कर रही होगी। ऑल्दो डायग्नोसिस इज़ नॉट अवर एरिया, इट इज़ एरिया ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट एंड फिजिशियन, लेकिन फिर भी कम से कम कुछ ना कुछ मालूमात हमें होनी चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से अगर पोस्ट रीनल फेलियर है, पोस्ट रीनल फेलियर कॉज बाय ऑब्स्ट्रक्टेड यूरिनरी फ्लो में मैनिफेस्ट इटसेल्फ, मीन्स कि यूरिनरी फ्लो जो हो रहा है कहीं पर वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, कहीं ब्लॉकेज हो रही है, तो उसमें क्या होगा, सुप्रा प्यूबिक और फ्लैंक मास यानी प्यूबिक रीजन के ऊपर मास फील होगा हमें। इसके अलावा ब्लैडर डिस्टेंशन यानी ब्लैडर जो होगा वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंडेड होगा, खिंचा हुआ होगा, उसमें यूरिन बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हुआ होगा और वो पास आउट नहीं हो रहा होगा। इसके अलावा कॉस्टोवर्टेब्रल एंगल टेंडरनेस यानी जो इंटरकॉस्टल बोन्स होती हैं यानी ये जो रिब्स की जो बोन होती हैं इनको कॉस्टल बोन कहा जाता है, तो वर्टेब्रा और कॉस्टल बोन एंगल की जो होगी वहाँ पर जो होगी टेंडरनेस यानी बहुत ज़्यादा खिंचाव होगा, दैट ऑल्सो सजेस्ट पोस्ट रीनल फेलियर। इसके अलावा प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट या जिसको हम प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी भी कहते हैं, जो कि BPH के पेशेंट अक्सर ओल्ड एज में पेशेंट हो जाते हैं, तो उस प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट की वजह से भी यूरिन आउटपुट में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, जिसकी उसकी वजह ये होती है कि जो यूरिथ्रा जो होता है वो कॉम्प्रेस हो रहा होता है प्रोस्टेट के साइज़ बढ़ जाने की वजह से, और उसकी वजह से पेशेंट को यूरिन पास करने में मुश्किल आ रही होती है। जब ये प्रॉब्लम होगी पेशेंट को तो उस सूरत में जो होगा वो फिर जो कंडीशन होगी दैट इज़ जो होगी वो ये कि क्योंकि किडनी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किडनी के बाद जो है वो एक ऑब्स्ट्रक्शन यानी रुकावट आ रही है यूरिनरी फ्लो में, इसी वजह से इसको भी पोस्ट रीनल फेलियर की कंडीशन में कंसिडर किया जाएगा। अगर हम प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट को कंट्रोल कर लें, इसके लिए ड्रग्स भी आती हैं, और फिर अगर ड्रग से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा हो तो फाइनली सर्जिकल रिमूवल भी किया जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, इससे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है अगर ये पेशेंट पोस्ट रीनल फेलियर में जा रहा है ड्यू टू प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। तो ये था क्लिनिकल एवेल्युएशन। नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट रिजल्ट, यानी वो ये कि हिस्ट्री आपने ले ली, फिजिकल एग्जामिनेशन भी हो गया, अब आ रहे हैं लैब टेस्ट पे, यानी L पे HPLC में जैसे मैंने बताया था कि लैब टेस्ट कराएंगे, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट रिजल्ट्स यूरिन एनालिसिस, और यूरिन एनालिसिस जिसको हम यूरिन DR भी कहते हैं, इंक्लूड एन एग्जामिनेशन ऑफ सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स क्या है उसमें, ठीक है,
identification of proteins, glucose, ketones, blood, nitrites, measurement of urine pH, urine specific gravity, concentration and osmolality means dilution. ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं यूरिन डीआर में. प्रोटीन तो नहीं आ रहे, ग्लूकोज है या नहीं है, कीटोन बॉडीज़ हैं या नहीं है, ब्लड है नहीं है, नाइट्राइट्स है नहीं है, पीएच क्या है यूरिन का अपनी उस नॉर्मल रेंज में है या नहीं है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, ऑस्मोलैलिटी कितनी है, ये तमाम चीज़ें हम यूरिन डीआर में या यूरिन एनालिसिस में चेक करते हैं. प्रायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड्स, diuretics and change in urinary pH may confound accurate diagnosis using यूरिन एनालिसिस. यानी जो है वो प्रायर एडमिनिस्ट्रेशन टू फ्लूइड देना है, डायरेटिक्स देनी है या जो यूरिनरी पीएच को मैनेज करना है, उससे पहले ये यूरिन एनालिसिस कराना ज़रूरी है ताकि आप किसी हतमी नतीजे पर पहुंच सकें. क्योंकि यूरिन एनालिसिस में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. पहली इन्फॉर्मेशन जैसे यूरिनरी सेडिमेंट एग्जामिनेशन से आपको क्या पता चलेगा. जैसे अगर कास्ट सेल्स आ रहे हैं, फ्यू कास्ट्स एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर फाउंड इन प्री रीनल ARF. अगर कास्ट सेल्स यानी वहाँ के एपिथेलियल सेल्स जो डैमेज होते हैं वो आ रहे हैं वहाँ पर, या फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो भी यही यानी जिस एलिमेंट्स वहाँ पे आ रहे हैं उसके किडनी के सेल्स के, तो उसको वो सजेस्ट करेगा. यानी जो उसकी जो लाइनिंग होती है वो जो किडनी की उसके जो अगर सेल्स आ रहे हैं और वो फ्यू इन क्वांटिटी है तो दैट विल सजेस्ट प्री रीनल ARF. अच्छा, अगर पिगमेंटेड सेलुलर कास्ट हैं, यानी पिगमेंटेड सेलुलर कास्ट हैं, ज़्यादा बड़े साइज़ के हैं, एंड रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स ये भी हैं, दैट अपीयर इन ATN. ATN क्या है? एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस. एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस. इसके बाद है कि अगर रेड ब्लड सेल्स आ रहे हैं एंड वाइट ब्लड सेल्स कास्ट जनरली रिफ्लेक्ट इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, कि जिसकी वजह से RBC और WBC भी वहाँ पर लीक आउट होकर आ रहे हैं और किडनी में कहीं पर इन्फ्लेमेशन मौजूद है. अच्छा, लार्ज नंबर ऑफ ब्रॉड वाइट सेल कास्ट सजेस्ट क्रॉनिक रीनल फेलियर. लार्ज नंबर में आ रहे हैं और बड़े साइज़ के वाइट सेल्स कास्ट हैं, यानी जो कास्ट सेल्स यानी वो जो पुराने सेल्स हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, तो ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा होगा. ये इसका मतलब ये कि पेशेंट को किडनी फेलियर पहले से था और अब वो क्रॉनिक कंडीशन में जाना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ ब्रॉड वाइट सेल कास्ट आ रहे हैं. इसके अलावा द प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन विच इज़ कॉल्ड हेमेटूरिया और प्रोटीन विच इज़ कॉल्ड प्रोटीनयूरिया इंडिकेट्स रीनल डिसफंक्शन, कि यानी किडनी में कहीं पे कोई डिसफंक्शन है जिसकी वजह से ब्लड भी आ रहा है और प्रोटीन भी आ रहा है. यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी ranges from 1.01 to 1.016 in ARF. ठीक है, बहरहाल इसकी अपनी एक कितनी सिग्निफिकेंस है भी, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है. लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है जो ये कास्ट सेल्स हैं, पिगमेंटेड हों, फ्यू हों, या वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स यानी हेमेटोरिया, प्रोटीनयूरिया, इनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. यूरिन ऑस्मोलैलिटी यानी डाइल्यूशन टिपिकली राइजेज इन प्री रीनल ARF ड्यू टू इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन. तो ऑस्मोलैलिटी यानी डाइल्यूशन जो होती है वो राइज हो जाती है ड्यू टू क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन. अच्छा, इसके अलावा मेजरमेंट ऑफ यूरिन सोडियम एंड क्रिएटिनिन लेवल कैन हेल्प क्लासीफाई द ARF. तो आप ये देखें कि यूरिन में सोडियम कितना है एंड क्रिएटिनिन लेवल, तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पेशेंट जो है वो उसकी ARF की यानी एक्यूट रीनल फेलियर की कौन सी क्लास में हो सकता है, यानी प्री रीनल में है, इंट्रा रीनल में है या पोस्ट रीनल में है. जैसे यहाँ पे इन प्री रीनल ARF यूरिन क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस एंड यूरिन सोडियम लेवल डिक्रीजेस. यानी क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन जो होगी यूरिन में बढ़ जाएगी और सोडियम लेवल जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा. सोडियम लेवल डिक्रीज हो जाएगा और क्रिएटिनिन जो लेवल होगा यूरिन में बढ़ जाएगा. बट इन इंट्रिंसिक ARF particularly if it is resulting from ATN, the urine
क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस एंड द यूरिन सोडियम लेवल इंक्रीजेज, यानी उल्टी सिचुएशन होगी, वाइस वर्सा होगी इंट्रिंसिक में कि क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन जो होगी यूरिन में कम हो जाएगी और सोडियम लेवल जो होगा यूरिन में बढ़ जाएगा। तो ये जो होगा आपके सामने एक सिचुएशन होगी जिसको आप देख के ये अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि पेशेंट इज़ हैविंग इंट्रिंसिक ARF, पर्टिकुलरली ATN यानी एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। अच्छा, क्रिएटिनिन क्लियरेंस की अगर हम बात करें, क्रिएटिनिन क्लियरेंस एन इंडेक्स ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, आप क्रिएटिनिन क्लियरेंस से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मालूम करते हैं। ये क्या करेगा, अलाउज एस्टिमेशन ऑफ ए नंबर ऑफ फंक्शनिंग नेफ्रॉन, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि फंक्शनिंग नेफ्रॉन कितने % तकरीबन बॉडी में मौजूद है। डिक्रीज क्रिएटिनिन क्लियरेंस इंडिकेट द रीनल डिसफंक्शन, डेफिनेटली अगर क्रिएटिनिन क्लियरेंस कम होगी तो ये जाहिर करेगा कि किडनी में डिसफंक्शन है, और जितना क्रिएटिनिन क्लियरेंस कम होता चला जाएगा उतना ही किडनी फंक्शन डिसफंक्शन यानी किडनी फंक्शन जो होगा वो रिड्यूस होता चला जाएगा। इसके अलावा ए टाइम्ड यूरिन कलेक्शन शुड बी यूज टू कैलकुलेट GFR इन एक्यूट रीनल फेलियर। तो उसमें वो ये यहाँ पर ये है कि ए टाइम्ड का मतलब ये है कि आपने क्या करना है कि 24 आवर यूरिन कलेक्शन करनी है और उसमें देखना है कि उसमें जो है वो क्रिएटिनिन की कंसंट्रेशन क्या है और सीरम में क्रिएटिनिन की कंसंट्रेशन क्या है। तो उससे ज़्यादा बेहतर तौर पर GFR आप मालूम कर सकते हैं, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मालूम कर सकते हैं इन केस ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। यानी ये पता चल जाएगा कि कितने % फंक्शनिंग नेफ्रॉन इस वक्त मौजूद हैं। क्योंकि देखिए क्रिएटिनिन क्लियरेंस कैलकुलेट करने का एक सीधा तरीका तो ये भी है कि आपके पास सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू हो, पेशेंट की एज हो और पेशेंट का वेट हो, तो आप उससे भी जो है पेशेंट का क्रिएटिनिन क्लियरेंस मालूम कर सकते हैं। और वो इक्वेशन होती है बेसिकली गॉल्ट-कॉकरॉफ्ट इक्वेशन, जो कि इक्वेशन क्या है कि क्रिएटिनिन क्लियरेंस अगर आपको मालूम करना है तो उसका फॉर्मूला है 140 माइनस एज इनटू वेट इन kg ऑफ द पेशेंट, ठीक है। 140 माइनस एज ऑफ द पेशेंट मल्टीप्लाई बाय वेट इन kg ऑफ द पेशेंट डिवाइडेड बाय 72 इंटू सीरम क्रिएटिनिन वैल्यू ऑफ द पेशेंट। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो पेशेंट का क्रिएटिनिन क्लियरेंस मालूम हो जाएगा। अगर किसी फीमेल का मालूम कर रहे हैं तो फिर इस रिजल्ट को आखिर में 0.85 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 85% से मल्टीप्लाई कर दें। उसकी वजह ये होती है कि जो मेल का जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस होता है उसके मुकाबले में फीमेल का जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस होता है वो 85% होता है, यानी 15% कम होता है इन नॉर्मल फिजियोलॉजी। तो इसी वजह से उसको 15% से यानी 0.15 से 0.85 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी ताकि 0.15 कम हो जाए और उसको चेक कर लिया जाए। और दूसरा मेथड क्या है, एक तो इसकी इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ये इक्वेशन जो होगी वो एक एस्टिमेशन देगी। सपोज दैट, क्योंकि देखिए एवरेज इसकी वैल्यू होती है 100 से लेके 110 ml पर मिनट तक, तो ये जो होती है नॉर्मल कहलाती है। तो यानी इसका मतलब होता है कि जो नेफ्रॉन है वो 100% फंक्शनिंग कर रहे हैं अगर क्रिएटिनिन क्लियरेंस की वैल्यू आ रही है इन बिटवीन 100 to 110 120 ml पर मिनट। लेकिन जितना ये कम होता जाएगा लाइक 80 70 60 50, तो इसका मतलब है उतने % जो है वो फिर नॉर्मल से जो नेफ्रॉन की फंक्शनिंग है वो उतने % कम होती चली जा रही है। अच्छा, अब क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये हमें एक रफ एस्टिमेशन देती है, लिहाजा ज़्यादा एक्यूरेट कैलकुलेशन के लिए ये ज़रूरी है कि एक और फार्मूला यूज़ किया जाता है जिसमें आप 24 आवर यूरिन कलेक्ट करते हैं कि कितना यूरिन आया, उसमें पर ml जो था वो या जो था मिलीग्राम पर डेसीलीटर कितना जो था वो सीरम यूरिन में कितना क्रिएटिनिन था और सीरम में कितना क्रिएटिनिन था। इसका फार्मूला जो है वो अप्लाई करके हम इससे 24 आवर यूरिन कलेक्शन से भी ये मालूम कर सकते हैं कि क्रिएटिनिन क्लियरेंस क्या था, कितना था और किस तरह से था, और उससे जो होगी वो यानी जो
जो कॉकराउट गॉल्ट इक्वेशन है उससे ज़्यादा एक्यूरेट एस्टिमेशन हमें मिल सकती है। तो इस वजह से जो है इसको जो है वो कंसिडर किया जाता है इस केस में 24 आवर यूरिन कलेक्शन को, जिसको कहा जाता है ए टाइम्ड यूरिन कलेक्शन, मीन्स 24 आवर यूरिन कलेक्शन। यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि क्रिएटिनिन क्लियरेंस का फार्मूला जो कि क्लिनिकल लेबॉरेटरी टेस्ट के चैप्टर में इसी बुक में मौजूद है, उसमें ये कि सबसे पहले ये है वो 24 आवर टाइम्ड यूरिन जो कलेक्शन है उसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने देखे ये नॉर्मल वैल्यूज़ भी दी हुई हैं कि नॉर्मल वैल्यू क्या है क्रिएटिनिन क्लियरेंस की। नॉर्मल वैल्यूज़ रेंज फ्रॉम फॉर मैन ये आपकी हो गई फ्रॉम 75 to 125 ml पर मिनट, बट ऑन एन एवरेज हम इनको 100 से 110 कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले ये 24 आवर वाला मेथड। कैलकुलेशन रिक्वायर नॉलेज ऑफ यूरिनरी क्रिएटिनिन एक्सक्रीशन usually over 24 hour and concurrent serum creatinine level and creatinine clearance is calculated as follows: CLCR, CUV, CR। यहाँ पे क्या है ये CLCR जो है क्रिएटिनिन क्लियरेंस है, यानी ये क्रिएटिनिन क्लियरेंस है। अच्छा, इसके अलावा CU क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ क्रिएटिनिन इन यूरिन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ क्रिएटिनिन इन यूरिन। V इज़ द वॉल्यूम ऑफ यूरिन, ठीक है, कि इन ml पर मिनट ऑफ यूरिन फॉर्म इन कलेक्शन टाइम। इसके अलावा CCR क्या है? इज़ द सीरम क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन, सीरम क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन। तो आपके पास ये होना चाहिए कि 24 आवर में कितने वॉल्यूम यूरिन आया उसको पर मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके अलावा मिलीग्राम पर ml कितना यूरिन कितना जो है वो क्रिएटिनिन था मिलीग्राम पर ml यूरिन में और सीरम में कितना मौजूद है। तो हमने क्या किया, अब जैसे यहाँ पे इन्होंने एक सपोज दे दिया, सपोज द सीरम क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन इज़ 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी ये वैल्यू कितनी है 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एंड 1440 ml यूरिन वॉज कलेक्टेड इन 24 आवर, जो 24 घंटे में 1440 ml यूरिन कलेक्ट हुआ। अच्छा, 24 घंटे में कितने मिनट बनते हैं? 1440 मिनट ही बनते हैं। तो जब 1440 डिवाइडेड बाय 1440 किया गया तो यह बन गया 1 ml पर मिनट, ठीक है। तो यूरिन का वॉल्यूम था 1 ml पर मिनट। अच्छा, द यूरिन कंटेन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर क्रिएटिनिन। तो यूरिन में जो था कंसंट्रेशन थी उसकी जो क्रिएटिनिन की थी वो थी 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यहाँ पे ये ml गलत लिखा है, ये डेसीलीटर होना चाहिए, क्योंकि देखें अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये फाइनली 100 ml पर मिनट आएगा। तो देखें मिलीग्राम पर डेसीलीटर आपस में कैंसिल होने चाहिए और ml पर मिनट फाइनल आंसर आपका आना चाहिए। तो इस तरीके से ये 24 आवर यूरिन कलेक्शन से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो है वो क्रिएटिनिन क्लियरेंस क्या है। दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया था कि वही कॉकरॉफ्ट गॉल्ट इक्वेशन, ठीक है। तो ये वही है, द फार्मूला प्रोवाइड एन एस्टिमेटेड वैल्यू कैलकुलेटेड फॉर मेल्स, वही 140 माइनस एज इंटू ईयर्स इंटू बॉडी वेट इन केजी डिवाइडेड बाई 72 इंटू सीरम क्रिएटिनिन इन मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एंड फॉर फीमेल्स यूज 0.85 ऑफ द वैल्यू कैलकुलेटेड फॉर मेल्स, यानी वही 0.85 से मल्टीप्लाई करते हैं इस फाइनल वैल्यू को ताकि फीमेल की वैल्यू करेक्टेड आ जाए। एग्जाम्पल इन्होंने दे दिए, ए 20 ईयर ओल्ड, एज आ गई, मेल वेइंग 72 kg, वेट भी आ गया, हैज़ क्रिएटिनिन क्लियरेंस, सीरम क्रिएटिनिन 1.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो आपके पास ये भी वैल्यू आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई, बाकी 140 माइनस एज किया, ठीक है, इंटू 72 इसका पेशेंट का वेट डिवाइडेड बाय 72 इंटू सीरम क्रिएटिनिन, पेशेंट का ये फाइनल आंसर निकल कर आ गया एस्टिमेटेड GFR और क्रिएटिनिन क्लियरेंस, जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है एस्टिमेटेड क्रिएटिनिन क्लियरेंस और या किडनी फंक्शन ऑफ द इस 20 ईयर ओल्ड मैन का, और जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बेसिकली क्या है एक नॉर्मल रेंज में है, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। तो ये क्रिएटिनिन क्लियरेंस के हवाले से हमने तमाम बातें कर ली इन एक्यूट रीनल फेलियर। इसके बाद है ब्लड केमिस्ट्री
यानी ब्लड जब हम CBC वगैरह कराएंगे या ब्लड टेस्ट करवाएंगे मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लड के ज़रिए, तो उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, दैट वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.